Good morning students. Today in this class we will do activity number 11 of class 9th whose title is graph of a linear equation। ਬੱਚੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਸਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 11। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 11 ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟਾ। then next जो heading है बच्चे that is title graph of linear equation, उस तो नीचे तुसी बेटा graph of linear equation heading बनाना है। then is your objective बच्चे तो तुसी इस तो बाद की करना है, तुसी इत्थे objective नोट करना है बेटा, ठीक है। heading तो बाद तुसी objective नोट करोगे पूरी statement, ठीक है बच्चे। then is prerequisite knowledge वो बच्चे तुसी नोट नहीं करनी, ठीक है। then it is material required, material required ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। then ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। then after that ਬੇਟੇ ਪਲੇਨ ਪੇਜ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ then after that ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। then you have to draw a table here, otherwise ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੀਅਰ, ਠੀਕ ਬੱਚੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 46 ਹੈ। ਆਫਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੇयर इज़ अ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਹੈਡਿੰਗ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਜੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰਾ। ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 11 ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਬੱਚੇ। ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਹੈਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਪੁਆਇੰट्स हैं, ठीक है। यू कैन सी हेयर फ्रॉम 1 to 5 बच्चे हैं जो थोड़े इस पेज के ऊपर गिवन है। एंड नैक्सट पेज के ऊपर बच्चे जो थोड़े नैक्सट पॉइंट्स ने वो गिवन ने 6, 7 and 8 जो पॉइंट है बेटा वो थोड़े नैक्सट पेज के ऊपर गिवन है, ठीक है बच्चे। सो ये जो प्रोसीजर है तुसी नोट करना है बेटा, ठीक है बच्चे। ये प्रोसीजर तुसी नोट करना है। अगर इस पेज के ऊपर ख़त्म नहीं हो रहा बेटा, पेज नहीं बच रहा थोड़े को, दैन यू विल मूव ऑन अदर नैक्सट लाइनिंग पेज, दैन यू विल कंप्लीट हेयर। थोड़ा प्रोसीजर इतने खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। दैन आफ्टर दैट तुसी उत्थे इस दे नीचे भी रिजल्ट लिखोगे, ठीक है बच्चे। तो इत्थे थोड़ी जो है एक्टिविटी है रिटन वर्क है जो एक्टिविटी का वो ओवर हो गया बेटा। हुण बेटा साडा काम है कि असी एक्टिविटी नूं परफॉर्म किद्दां करना है। ये एक्टिविटी है कि वॉट इज़ इन प्रोसीजर, वॉट इज़ इन डायग्राम, लेट अस सी की है बच्चे। हाँ जी बेटा। सो लेट अस सी हुण असी एक्टिविटी समझांगे की है बेटा। असी एक्टिविटी समझ रहे हैं बेटा इस दे विच की है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। असी एक लीनियर इक्वेशन लेनी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटे, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव की है साडा, ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑबटेन अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ अ ग्राफ विच रिप्रजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन। साडा ऑब्जेक्टिव है असी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है बेटे एंड ड्रॉ अ ग्राफ, असी ग्राफ ड्रॉ करना है विच रिप्रजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन। वो ग्राफ ड्रॉ करना है जिहड़ी असी ये लीनियर इक्वेशन बनाई होएगी उसनू रिप्रजेंट करता होएगा। ठीक है बेटे। सो हुण जो इस दे लई सानू मटीरियल चाहिए है, साडे कोल ग्राफ पेपर होना चाहिए बेटे, पेन पेंसिल्स इरेजर एंड रूलर, रूलर मीन स्केल होना चाहिए बेटा। ठीक है। सो लेट अस सी बेटे जो लीनियर इक्वेशन असी बनानी है उसके लिए सानू कुछ सिचुएशन चाहिए है। सो हेयर इज सम सिचुएशन गिवन टू अस। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन। एक सिचुएशन गिवन है बच्चे, सपोज यू हैव 60 रुपीज़ टू स्पेंड। बच्चे थोड़े कोल 60 रुपीज़ ने खर्चा करन दे लई। ठीक है। यू वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, तुसी एक स्टेशनरी शॉप ते जांदे हो टू बाय सम पेंसिल्स एंड सम पेन्स। तुसी कुछ पेंसिल्स खरीदन लई जांदे हो और कुछ पेन्स खरीदन लई जांदे हो। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज़ ₹2। वन पेंसिल दी जो कॉस्ट है बेटा वो ₹2 है एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ ₹4। एक पेन दी कॉस्ट 4 है बेटे, एक पेंसिल दी कॉस्ट ₹2 है। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स बॉट बाय यू फ्रॉम द शॉप। तुसी फाइंड की करना है बच्चे, तुसी फाइंड करना है किन्नियां नंबर ऑफ पेंसिल्स और किन्ने नंबर्स ऑफ पेन्स हैं जिहड़े तुसी खरीदे शॉप तो। ठीक है बच्चे। सो लेट अस सी असी हुण इस सिचुएशन का जो ये सिचुएशन सानू गिवन है इसका असी ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है बेटे। सो हुण असी देखांगे जरा, पहला असी सिचुएशन की लीनियर इक्वेशन बनानी है। वी विल कंसीडर लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी x। हुण असी बेटे की कीता, जो नंबर ऑफ पेंसिल्स और उन्होंने x कंसीडर कर लिया, नंबर ऑफ पेन्स नू y। बच्चे अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स x है, ठीक है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है, दैन x पेंसिल्स की कितनी होएगी बेटे 2 × x हो जाएगी। सो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ टोटल पेंसिल्स x पेंसिल्स है जिन्नी उन्होंने कॉस्ट की हो गई बेटे 2 × x, दैट इज़ 2x हो गई। दैन बच्चे कॉस्ट ऑफ जो वन पेन है दैट इज़ ₹4। एक पेन की कॉस्ट बच्चे ₹4 है। दैन नंबर ऑफ पेन्स साढ़े कोल y कंसीडर करें असी, अगर एक पेन की कॉस्ट ₹4 है बच्चे तो y की की हो जाएगी y × 4। सो दैट मीन्स इट इज़ 4y। सो बच्चे तुसी पेंसिल्स दे लई 2x रुपीज़ दिते हैं और पेन्स दे लई 4y रुपीज़ दिते हैं, बट टोटल दिते किन्ने हैं तुसी बेटा 60 रुपीज़ दिते हैं। सो इसका मतलब जो थोड़ी इक्वेशन बनेगी वो की बनेगी 60 रुपीज़ इक्वल टू 2x + 4y। ये 60 रुपीज़ जो थोड़ा रुपीज़ की फॉर्म में गिवन है, ये बेटा 2x + 4y ये जो साड़ी वेरीएबल्स की फॉर्म में है। ठीक है बच्चे। सो अवर इक्वेशन इज़ नाउ 60 = 2x + 4y। ठीक है बच्चे। हुण तुसी की करना है बच्चे, जो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है हुण इस दे विच असी इसदे कुछ सोल्यूशनस फाइंड करने हैं। ठीक है। सो दैट बच्चे असी आ वाला टेबल बना सकीए। ठीक है बेटे। हुण ये जो टेबल बनेगा बच्चे, हुण इसनूं तुसी करना किद्दां, टेबल बनेगा किस तरह बेटा, ये तुसी जो लीनियर इक्वेशनस वाला चैप्टर है तुसी उस दे विच सीख चुके हो बेटा। ठीक है। उस दे विच की करते हैं बच्चे, असी 1 बाय 1 x और y दियाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा, चाहे x दियाँ पुट कर लो चाहे y दियाँ। अगर सपोज असी x दियाँ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साड़ियाँ y दियाँ वैल्यूज़ आ जाती हैं। इत्थे ही कंसीडर कर लीए बेटा सारे टेबल दे विच जो फस्ट x की वैल्यू 0 है, अगर असी बच्चे इत्थे x नू 0 पुट करते हैं दैन साडे कोल जो y आएगा वो साडे कोल आएगा 15। इस तरह ही बच्चे इफ़ वी फिल x2 दैन वी विल गेट y 14। ऐसे तरह ही बच्चे साडे कोल 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है। 1 कोऑर्डिनेट, सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चे। ठीक है। हुण असी बच्चे देखना है कि असी इन्हां कोऑर्डिनेट्स नू यूज़ करके ये वाला ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है। सो बच्चे मैं तुहानूं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सो लेट अस टेक अ ग्राफ पेपर। हाँ जी बेटा। सो आई हैव अ ग्राफ पेपर हेयर। सो यू कैन सी हेयर आई हैव ड्रॉन हेयर अ x एक्सिस एंड अ y एक्सिस हेयर। तुसी देख रहे हो बच्चे एंड यू कैन क्लीयरली सी कि बेटा मैं x एक्सिस और y एक्सिस दियाँ जो पार्ट्स ले हैं वो पॉजिटिव वाले पार्ट्स ले हैं, नैगेटिव वाले पार्ट्स नहीं ले। ठीक है। सो असी इत्थे जो वैल्यूज़ फिल करांगे x दियाँ वो पॉजिटिव फिल करांगे, उहदे लई y दियाँ वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ रही ने। ठीक है बच्चे। सो हुण बच्चे तुसी देख रहे हो जो मैं इत्थे स्केल लिया है वो 2 टू द गैप लिया है। सो हियर इज़ 2 4 6 8 10 12 so on and here is again 2 4 6 8 10 12 14 16 so on। ठीक है बच्चे। सो हुण असी बेटा इत्थे ग्राफ ड्रॉ करांगे। फॉर ग्राफ बच्चे सानू यही टेबल चाहिए होएगा
यू कैन सी साडे कोल फर्स्ट कोऑर्डिनेट की है बेटा 0,15 है। सो एक्स नू असी पहला 0 लेना बेटा और ਉਹਦੇ कोरस्पोंडिंग वाई साडा 15 होएगा। एक्स ਤਾਂ ਸਾਡਾ बेटा ਇੱਥੇ ही 0 है, ठीक है। और जो वाई 15 है बच्चे वो साडा कित्थे आएगा 14 एंड 16 ਦੇ ਵਿੱਚ जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होएगी बेटे ਉੱਥੇ 15 होएगा। सो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ डॉट लगा के बिल्कुल ही माइनर जिहा डॉट लगा के ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सर्कल लगावांगे बेटे और उस दे नाल ਅਸੀਂ कोऑर्डिनेट्स लिखांगे 0,15। दैन बच्चे जो साडे सैकेंड कोऑर्डिनेट है वो की है बेटा दैट इज़ 2,14। सो एक्स नू 2 और वाई नू 14 लेना है बच्चे। सो हेयर एक्स इज़ 2 तो जावांगे बेटे और वाई 14 दे कोरस्पोंडिंग इत्थे पहुँचांगे बेटे। माइनर जिहा डॉट लगा के उस जगह ते असी सर्कल लगावांगे बेटे, ठीक है। दैन वी विल राइट हेयर 2,14। दैन वॉट नेक्स्ट साडा थर्ड कोऑर्डिनेट है बेटे 4,13। एक्स 4 वाई 13 कित्थे आएगा बेटा वाई 13 आएगा 12 एंड 14 दे सेंटर दे विच आएगा जो सेंटर वाली लाइन होंदी है। सो इतों 13 तो लाइन आ रही है बेटा और इतों साडी 4 तो लाइन जा रही है और इत्थे बिल्कुल आएगा साडा पॉइंट। सर्कल लगावांगे बच्चे एंड वी विल राइट कोऑर्डिनेट 4,13। दैन असी लिखांगे बेटे साडा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है 6,12 है। एक्स 6 है वाई 12 है बच्चे। सो एक्स इज़ 6 एंड बच्चे वाई इज़ 12। सो वी विल गेट हेयर द पॉइंट। ये साडे कोल पॉइंट इत्थे आ गया और असी इहनूं मार्क करके बच्चे इत्थे असी लिखांगे 6,12। हुण बच्चे असी की करना है, ये सारे पॉइंट्स नूं असी एक स्केल दे नाल ज्वाइन करना है। सो बेटा देखो आई विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द स्केल। तुसीं देख रहे हो बेटा सारे पॉइंट्स नूं असीं स्केल दे नाल ड्रॉ कर देवांगे, ज्वाइन कर देवांगे बच्चे, ठीक है। सो जो ये लाइन है बच्चे वो एक्स एक्सिस नूं भी कट कर रही है और ये वाई एक्सिस नूं भी कट कर रही है। इसे दोनों साइड से कॉर्नर्स से एरोज लगा देवांगे बच्चे। सो बेटा नाउ दिस लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ ए लाइन किसका ग्राफ है जो साडी लीनियर इक्वेशन सी बच्चे एक जो लाइन है उसका ग्राफ है, ठीक है बेटा। सो बच्चे हुण तुसी की करना है, ये साडा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तुसी इत्थों इस ग्राफ नूं कट करोगे, ठीक है। इस ग्राफ नूं कट करन तो बाद जो तुहानूं फाइल दे विच दिखाया सी तुसी उत्थे पेस्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। तुहानूं दिखाया सी बच्चे इस फाइल दे विच इस मटीरियल रिक्वायर्ड दे नीचे तुसी ग्राफ पेस्ट करना है, ठीक है बच्चे। सो तुसी इस ग्राफ नूं कट करोगे और तुसी इत्थे पेस्ट करोगे बच्चे, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग थोड़ा जो काम है वो इस मार्जिनस तो बाहर नहीं जाना चाहिए, मार्जिनस के नीचे एंड इस साइड लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आना चाहिए बच्चे, ठीक है। और अगर थोड़ा ग्राफ बेटा इतने पूरा नहीं आ रहा तो तुसी अगले जो नैक्सट वाइट पेज है तुसी उसके ऊपर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। सो हुण बेटा अगे समझ लीए ज़रा। नैक्सट है बच्चे कि हुण इस ग्राफ तो जो है साडे कोल की ऑब्जर्वेशनस आंदियां ने असी लिखियां तो है बच्चे पहला ऑब्जर्वेशन। सो समझ लीए ज़रा हुण की है जो बच्चे साडी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है व्हाट इज़ दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन। येस जो साडा ग्राफ आया बच्चे वो स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। और वो किस नूं रिप्रजेंट कर दी है लीनियर इक्वेशन नूं जिहड़ी कि असीं पहलां बनाई सी। नैक्सट है सेकंड इज़ ऑन द लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट्स। येस बच्चे जो ये लाइन है इस दे उपर इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट्स हैं। तुहानूं पता है बेटा एक लाइन है जिहड़ी काफ़ी सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स नूं ज्वाइन करन तो बाद बनती है, ठीक है। सो इस लाइन के उपर इनफाइनाइटली मैनी कोऑर्डिनेट्स ने बच्चे। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो सानू सिचुएशन दिती है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टेकन दोज पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स विच आर नैचुरल नंबर्स। येस बेटा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन असी टेबल बनाया है नैचुरल नंबर्स का, ठीक है। नैचुरल नंबर्स हैं जिस दे विच जो असी वैल्यूज़ लई हैं जो कोऑर्डिनेट्स लए ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन असी सिर्फ वही वैल्यूज़ लई हैं। रिजल्ट की है बच्चे वी ऑब्जर्व्ड दैट फॉर द गिवन इक्वेशन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। सो असी ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि गिवन इक्वेशन दे लई असी सानू की मिलता है स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ पेपर के उपर, ठीक है। विच कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जेडी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नू कट कर दी है। येस सो दिस इज़ अवर रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स डू योर एक्टिविटी नीट एंड क्लीन। बच्चे जो थोड़ा समझाया गया है जिस तरह जी चीज़ जिस साइड पर करने लई बोली है प्लेन साइड पर करने लई बोली है तुसी उदा ही करनी है, ठीक है बच्चे। सो डू वेल, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन।